Okay, now let's discuss these two questions. Okay, so what is the first question we have here? If a mod of a vector is 3, mod of b vector is 4, then the value of lambda for which a plus lambda b is perpendicular to a minus lambda b. Okay, I told you. Whenever there will be two vectors perpendicular to each other, what is the concept? The concept is dot product of that two vector, or we can say that dot product of that two vector. Let's assume that vector 1, okay, dot vector 2 should be equal to 0. तो यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है? फर्स्ट वेक्टर वी हैव a vector plus lambda b vector. We have to take the dot product of this vector. किसके साथ लेंगे? दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट. The a vector minus lambda b vector बराबर कितना आ जाएगा? 0. That will be equal to 0. Now अब इनको यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है? नॉर्मली आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मतलब इनको आप इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो क्या ना राइट डाउन हियर a डॉट a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस फिर क्या लिखेंगे? लैम्डा b वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर क्या लिखेंगे? ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा ए डॉट बी. ओके, एंड आफ्टर दैट प्लस इंटू माइनस माइनस, जैसे आप लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हो ना, एक्जैक्टली सेम मेथड यू कैन अप्लाई हियर. माइनस लैम्डा स्क्वायर बी डॉट बी इक्वल टू 0. एक और प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, याद करो थोड़ा सा, कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है? दैट विल बी मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर. ओके, प्लस नाउ डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, मतलब ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, और बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हो. तो लैम्डा टाइम्स ऑफ मैं इसको क्या लिखूंगा? ए डॉट बी. ठीक है, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी माइनस lambda square b dot b can be write down, this is the mod of b whole square equal to 0. Can we cancel these two term? तो क्या मिलेगा? mod of a whole square. What is mod of a? Mod of a is given here 3, so can we say that 3 square minus lambda square, और mod of b का वैल्यू कितना दिया है? 4, so can we say that here into 4 square equal to 0. so 9 equal to, can we say that 16 lambda square. यदि आप इस टर्म को साइड लेके जाइएगा तो कितना आ जाएगा? 16 lambda square. So 9 by 16 can be write on that will be equal to what? Lambda square. So that implies here we can say that we will get lambda equal to Three what? by four. 3 by Look at the 4. option. Look at the option. There is no plus minus. So we'll take the only positive value. That will be the root over 9 by 16. So lambda equal to 3 by 4. Clear with this? So the answer is here 3 by 4. Okay. Now after that we'll discuss the second question. Okay. What is second question here? That I plus j minus k dot I minus j plus k cap. Okay. Now we know that the what is the I dot I, j dot j and k dot k. Okay, so we'll not discuss that thing. We'll solve directly the question here. What we have? I plus j minus k. Okay, dot product with I minus j plus k. Okay, we have to calculate this value. Mute yourself. Okay, guys. If you are not speaking, then mute yourself. So if you multiply this, can we write on I dot I here? After that when we take the dot product of I with the j, कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप डॉट जे कैप, फिर आई को फिर इससे मल्टीप्लाई करो के के साथ, आई को फिर इससे आपको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है. सो आई डॉट जे, फिर उसके बाद क्या आएगा? आई डॉट के. ओके, आफ्टर दैट प्लस, अब जे के साथ सेम कीजिए तो कितना हो जाएगा? जे डॉट आई, जे डॉट आई, देन फिर जे को फिर जे के साथ करेंगे तो माइनस जे डॉट जे, फिर इस जे को के साथ करेंगे तो प्लस जे. ओके, ओके, बेटर वे, लिसन, why we are doing this? We can find easily this part. How? We can take the dot product. What is dot product? Basically the coefficient of this into this. याद है आपको? मुझे क्या करना है? आई हाँ, प्लस जे 1 into माइनस के. 1. ओके, ये वेक्टर दिया है तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? आई माइनस जे प्लस के. तो हम उतना एक्सपांड नहीं भी करेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. क्यों? यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1. यहाँ पे भी कितना है? 1. तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो 1. यहाँ पे कितना है? प्लस 1. यहाँ कितना है? माइनस 1. तो प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1. यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है, तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1. नाउ सो 1 minus 2 equal to minus 1. So answer will be equal to what?
तो -1. -1. क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दो मेथड से भी आप कर सकते थे इसको। या तो आप एक, मैं जो पहला मेथड अडॉप्ट किया तो लंबा जा रहा था, बहुत लंबा होता और आपका उसमें टाइम कंज्यूम होता, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इजीली उस मेथड को अडॉप्ट कीजिए जो जिसमें आपको आंसर जल्दी मिले। ओके, ऐसा नहीं कि आप वो मार्क वाइज भी देखिए कितने मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ look at the screen, guys. Here so we have third question, fourth and fifth question. So now what will the answer for third question? Look at this, is a direct question. The angle theta between the two non-zero vector a and b, then given that cos theta. याद करो, तुम लोगों को मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था। a डॉट b का फॉर्मूला क्या था? इट विल बी द बेसिकली a mod of a, ओके, mod of b into cos theta. याद है आपको? ए बी cos theta बोला था, वेर a is mod a, b is mod b. इफ आई हैव टू फाइंड आउट cos theta, यहाँ से cos theta निकालो तो ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे। तो कैन वी राइट डाउन हियर a डॉट b डिवाइडेड बाय mod of b इक्वल टू cos theta। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यहाँ पे? a डॉट b डिवाइडेड बाय mod of, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। ओके, तो नाउ after that we'll discuss the question number 4. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? listen, if sum of two vector, no, sum of two unit vector, this is very important, the sum of two unit vector is itself a unit vector. मतलब मान के चलो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर u1 है, दूसरा यूनिट वेक्टर हमारे पास u2 है। ओके, इन दोनों का जो सम है ना वो तीसरा यूनिट वेक्टर के बराबर हो रहा है। साहिल, क्लियर हुआ ये पार्ट? हाँ या ना बताओ जल्दी से। ठीक है, इटसेल्फ ए यूनिट वेक्टर। कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस हमें निकालना। हमारा एम क्या है? एम क्या है कि u1 माइनस u2 निकालना, u1 माइनस u2 निकालना। ओके, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले एक बात बताओ मुझे, ये जब दोनों दिया है, यूनिट वेक्टर के बारे में आप क्या जानते हो? क्या होता है यूनिट वेक्टर के बारे में? यूनिट वेक्टर के बारे में क्या जानते हो? मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? द वन। ये जानते हैं। तो हम एक काम करते हैं, दोनों जगह दोनों साइड मॉडुलस ले लेते हैं। ले ले मॉडुलस। और याद करो, आपको हमने कुछ देर पहले बताया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड कितना होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है? और यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मैं इसमें यदि फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो? कैन वी से दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 cos थीटा इज इक्वल टू u3 क्या है? साहिल u3 क्या है? जल्दी बताओ, जिसको भी पता चल रहा है u3 क्या है, जस्ट टेल मी। ओके, u3 क्या है? u3 क्या है गाइस? 1. u3 यूनिट वेक्टर है। u3 जो यहाँ पे वेक्टर है ना, u3 वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? 1। ओके, u1 भी क्या है? यूनिट वेक्टर है। u2 भी क्या है? यूनिट वेक्टर है। मतलब इन दोनों का वैल्यू कितना होगा? 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? ये थोड़ा स्क्वायर दोनों साइड कर दीजिए। एक काम कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर। तो जब आप वहां पर स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आंसर? यहाँ पे स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा कितना होगा? 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब इस 2 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 2। सो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा इक्वल टू -1। सो cos थीटा इक्वल टू -1/2। जब बताओ cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? फर्स्ट में, सेकंड में? हमें एंगल यहां से यहां तक ही देखना होता है, यही हमारा थीटा है, यहां से यहां तक में। कौन से क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा का जो वैल्यू हमारा होगा, और ये 1/2 कितने के लिए होता है? सेकंड में। तो सेकंड में नेगेटिव होता है, मतलब पाई आ गया। और ये 1/2 कितने डिग्री के लिए होता है cos में? 60 ना, तो π/3। तो कितना आंसर हुआ थीटा का वैल्यू? अच्छा, यहाँ पे आप थीटा नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। थीटा निकालना है तो ठीक है, नहीं थीटा निकालना है तो भी चलेगा। आप cos थीटा का वैल्यू मिल गया। ओके, हमारा एम क्या था कैलकुलेट करना? हमारा एम था कैलकुलेट यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द वी कैन से दैट द यूनिट वेक्टर, उसका मॉडुलस हमें चाहिए था। अब कोई बताओ मुझे फॉर्मूला, दो वेक्टर दिया है यहाँ पे u1 माइनस u2, उसका क्या करना है? हमें डिफरेंस का मॉडुलस निकालना है। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप दिया हुआ है क्या? साहिल, आई कैप जे कैप के कैप दिया है क्वेश्चन में? नहीं।
नहीं दिया है, और फिर भी मॉडुलस की बात कर रहा है तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, और माइनस है तो क्या लगाएंगे हम लोग, रूट ओवर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर u2 माइनस square 2u1 u2, बोलो कॉस थीटा। cos theta ओके, अब बताओ यहाँ पे थोड़ा सा u1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, u2 का भी कितना, यूनिट वेक्टर है तो 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कितना होगा बोलो 1 इंटू कितना होगा 1, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है गाइस, कॉस थीटा नेगेटिव -1/2, और कभी भी नेगेटिव आए ना तो एक्सप्रेशन में लिखते टाइम आपको -1/2 को ब्रैकेट में लिखना है हमेशा। कैन वी कैंसिल दिस टू एंड दिस टू, कितना हो जाएगा बताओ थोड़ा सा, अब रूट ओवर 1 प्लस 1, 1 इंटू यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस कितना होगा +1, तो कितना आ जाएगा आंसर, द आंसर इज √3, सो दैट डिफरेंस विल बी √3। क्लियर गाइस, साइल समझ आया अच्छे से? Yes, sir. yes sir ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल, याद है ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन एंगल, मैंने बोला था इट इज एन इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, अल्फा दिया है 60, बीटा दिया है 45, गामा दिया है, और गामा नहीं दिया, वी हैव टू फाइंड आउट द गामा। ओके, नाउ आप लोग बताइए, जब अल्फा बीटा गामा दिया रहता है तो हमें एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है कि cos स्क्वायर अल्फा, cos theta, नो cos थीटा नहीं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos cos alpha, स्क्वायर हाँ, बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इट शुड बी ऑलवेज is इक्वल टू equal to 1। 1, हाँ, ओके, तो cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, ओके, प्लस cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 45 डिग्री, ओके, प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू वी डोंट नो, हमें यही फाइंड करना है, गामा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर 60 कितना होता है, cos 60 इज 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर, प्लस cos 45 1/√2 1 by root 2, होल स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर गामा दैट विल बी इक्वल टू 1, so can we say that this is 1/4 plus 1/2 plus cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इनको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा ये, थोड़ा सा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 + 1 कितना होगा 3/4 3 by 4, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये 3/4 को उस साइड लेके जाइए, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3/4, यहाँ पे 1 है, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 4 - 3 डिवाइड बाय 4, सो वी विल गेट हियर cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4। अब यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सो cos स्क्वायर वी हैव गामा इक्वल टू 3/4, so what is cos गामा, बोलो प्लस माइनस रूट ओवर, बिकॉज इफ यू लुक एट द ऑप्शन दो आंसर है, दो आंसर है ना, तो एक प्लस के लिए होगा एक माइनस के लिए होगा, सही है कि नहीं है, तो cos गामा इक्वल टू वी कैन से दैट प्लस माइनस रूट ओवर हाउ मच 1/4, 1/4. तो यदि 1/4 का 4 का रूट कितना होता है 2, तो cos गामा इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, cos गामा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अच्छा अब बताओ cos गामा यदि आपका प्लस 1/2 है तो कितना वैल्यू होगा गामा, अरे cos गामा COS, ओके, ना cos गामा इक्वल टू माइनस हाफ है तो कितना आंसर होगा, प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, और माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट, second सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड नहीं, इसमें से सेकंड लेंगे, एंगल हमेशा फर्स्ट और सेकंड में डिस्कस किया जाएगा इस सिचुएशन में, ठीक है, तो गामा कितना हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 डिग्री वाला ऑप्शन देखो इसमें नहीं है, तो ये हट जाएगा, इसमें है एक ऑप्शन यहाँ हो सकता है, ये भी नहीं रहेगा, और एक यहाँ पे है। अच्छा अब देखो जिसको नहीं भी आता ना ये क्वेश्चन करना, नहीं भी आता है कि गामा का वैल्यू कितना होगा नेगेटिव, तो भी कर सकता है, कैसे करेगा बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है नेगेटिव के लिए, कौन सा क्वाड्रेंट साहिल जल्दी बताओ, second सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा 90 से बड़ा होना चाहिए, तो एक तो आंसर 60 इसमें है और दूसरा आंसर 60 इसमें है, डी वाले में है, किसमें एंगल दूसरा एंगल 90 से बड़ा है, ये वाला है, हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आपको नहीं भी आ रहा है cos गामा सॉल्व करना तो भी आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन में से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल सिर्फ इसमें दिखता है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है दोनों, इसमें तो cos नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द गामा तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 180 डिग्री माइनस नेगेटिव के लिए 180 डिग्री और हाफ के लिए कितना 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज दिस, ओके, तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए इसको अच्छी तरह से, देखिए कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। Clear है sir. क्लियर है, ओके, नो इशू, just a second, for we'll discuss now next question, so give me a second guys।
Okay, now we will discuss now here 6 to 9 questions. So look at नो इशू गाइस। चलो ध्यान दो, अभी क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे फिर से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। हमेशा इन सब सारे क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ कर दो, बहुत इजीली तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या है हमारा x, ये मान लो y, और ये क्या है हमारा z। ना दिस पॉइंट दिस इज द पॉइंट हियर 3 4 5, यहाँ पे ले लो 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट है। कहाँ से डिस्टेंस निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये वाला। नाउ गाइस, यदि ये हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस माने तो ये y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? जितना यहाँ पे होगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो इधर भी कितना रहेगा? 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बता सकते हो? इस पॉइंट का क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, मतलब यहाँ से डिस्टेंस निकालना। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता है y एक्सिस पे कितना होता है? 0। z कोऑर्डिनेट भी पता है कितना होता है? 0। हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो हम इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से जितना होगा उतना ही यहाँ से ओरिजिन से भी होगा। तो कैन वी से दैट 4? यस और नो? हेलो। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड Yes, आउट sir. डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 3 - 0 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 4 - 4 होल स्क्वायर, प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, दैट इज 5 - 0 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा फिर? रूट ओवर तो 9 प्लस 0 प्लस 25, 9 प्लस 0 प्लस 25, कितना हो जाएगा आंसर फिर? 9 प्लस 25 34। ओके, तो व्हाट इज द आंसर हियर? द आंसर इज सी। क्लियर विद दिस? Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर गामा। नो इशू। आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में क्या पता है? वी नो दिस थिंग, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, बट वी वांट इन sin स्क्वायर। कैसे करेंगे? तो cos स्क्वायर अल्फा, याद करो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा गाइस? 1 माइनस 1 साइन minus स्क्वायर sin थीटा। square. तो यदि मैं cos स्क्वायर अल्फा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर Sin बीटा square beta. and cos square gamma 1 minus sin square gamma. Okay, it will be equal to 1. Now if you add 1 1 and 1 here, you will get 3. Okay, और उस 1 को इस साइड लेके आ जाओ -1, और इस सारे साइन स्क्वायर को साइड भेज दीजिए। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। सो द 3 इक्वल टू the not 3 3 minus 1, that will be equal to 2. So 2 equal to sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. ओके, आप लोग यदि इनका सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो आप वीडियो डाउनलोड करके, या नहीं तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लोग उसको कॉपी करो, तो आप देख लीजिएगा बाद में। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, mod of a is 2, mod of b is 5, a dot b is this, then what is the mod of a minus b? Now listen, given data, always look at the given data and what is our aim? Aim क्या है? mod of a minus b. Now look at the vector, there is no I cap, j cap, k cap, and we have to find out the modulus. I cap, j cap, k cap नहीं है, फिर भी मॉडुलस निकालना है, तो हम उनके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंट करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, नाउ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें सिर्फ cos थीटा की जरूरत है। एक काम करते हैं, तो हम पहले cos थीटा निकाल लेते हैं। वी हैव हियर a dot b वी हैव 8, बट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a dot b? a dot b is basically ab cos theta, so that will be equal to 8. remember, a means I am talking about mod of a, b का मतलब मैं लिख रहा हूं कि mod of b को मैं क्या लिख रहा हूं? b लिख रहा हूं। ओके, तो a की जगह पे कितना वैल्यू दिया है? 2, तो आई विल राइट ऑन हियर 2। b की जगह पे कितना वैल्यू दे रखा है? 5, तो 5 into cos theta is equal to 8. Can we cancel here? We'll get 4. So we have here cos theta equal to 4 by 5. Cos theta equal to 4 by 5. Now we'll calculate the mod of a vector minus b vector. कितना हो जाएगा? रूट ओवर a स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2. सो विल गेट हियर 4 प्लस 2 स्क्वायर ना 4, b का 5 है, तो 5 स्क्वायर 25, then minus 2 into a is basically 2, so 2 into b is 5, and 5 here into 2ab हो गया, ठीक है।
into cos theta. What is cos theta? Cos theta is 4 by 5. Can I cancel this and this? Then 2 into 2, 4. 4 into 4, 16. So we'll get here 29 root over 29 minus 16. That will be equal to root over 9 minus 6, 3, and 2 minus 1, 1. So root over 13 will be the answer. The answer will be the C. Okay. Now look at the, yes, बोलो. इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं ना? ए माइनस बी होल स्क्वायर से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. ए माइनस बी होल स्क्वायर में फिर आप ए डॉट बी की जगह वैल्यू रख सकते हैं, वो भी हो जाएगा. हाँ, ओके, वैल्यू हाँ. हाँ, उससे भी हो जाएगा. ओके, ये जो आरुषि बोल रही है वो इस मेथड से बोल रही है ए माइनस बी है, इसका उस स्क्वायर करेगी और उसको ऐसे लिखेगी ए माइनस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी. फिर इसमें वो मेथड अप्लाई करेगी, द ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस 2ab, उससे मेथड से भी कर सकते हैं. दोनों से सेम आंसर आएगा. ओके, जो भी मेथड आपको क्लिक करे यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. So AB vector is given here. A is given, then is given point, then coordinate of B. Okay, listen, very important. AB given है हमको. AB कितना है? That is 2i plus j minus 3k. Okay, and the point of A is given. A का point दिया हुआ. A का point कितना है? I cap. Okay, I cap plus 2. No I cap. Point लिख रहे हैं हम, अभी वेक्टर नहीं लिख रहे हैं. The point is 1, 2, minus 1. याद करो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर इसका? द आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. मान लो ये हमारा a वेक्टर है. ओके, ये वेक्टर है, इतना हमें दिया हुआ है. नाउ ab इज गिवन. व्हाट इज ab इक्वल टू? ab इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, द b वेक्टर माइनस a वेक्टर. ऐसा लिख सकता हूं. b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को मैंने b बोला है, और a क्या है? a इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए पॉइंट. इक्वल टू कितना है? 2i प्लस j माइनस 3k. अब आप यहाँ पे ए वेक्टर का लिख दीजिए, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना है? दैट इज i प्लस 2j माइनस k इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k. नाउ टेक दिस वेक्टर दैट साइड. सो बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2i प्लस j माइनस 3k. ओके, एंड द प्लस, ये सारा उस साइड लेके जाइए तो प्लस हो जाएगा. तो प्लस कितना हो जाएगा? i प्लस 2j माइनस k. नाउ इफ यू सॉल्व दिस, क्या आ जाएगा आपका आंसर? फिर यहाँ पे 2i प्लस i दैट विल बी इक्वल टू 3i j प्लस 2j 3j एंड 3k माइनस k माइनस 4k. वेट अ मिनट, या माइनस 4k. सो दिस इज द बी वेक्टर. ये बी क्या है? पोजिशन वेक्टर है. यदि आपको पोजिशन वेक्टर पता है तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. So this is the what? The B vector. This is not, listen. The B vector here, the position vector of point B. Position vector of point B. तो यदि B वेक्टर का पोजीशन, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो B का पॉइंट क्या आएगा? That point will be the 3, 3, minus 4. 3, 3, minus 4. Is there an answer? Yes, 3, 3, minus 4 is the first option. Okay. Guys, wait for the next question, guys. Just a second. Till question number 9 done. Now we'll discuss the 11, 12 and 13. First we'll discuss 11 and 12. Okay. 13 question is very important, or you can say that exam, or you can say that the concept wise. Okay. Just a second, guys. Now look at the question. The question number 10. What do we have? Question number 10. If L, M, and R the direction cosine of a line, then Li plus Mj plus Nk is, याद करो, बताया था कि L, M, N और cos alpha, cos beta, cos gamma, all this thing is basically known as direction cosine, and direction cosine is related with unit vector. Unit vector of along the line. So what is here? LMN, the direction cosine of the line, then Li plus Mj plus Nk is basically unit vector along the line. The option is the B. पहले तो नल वेक्टर गलत है. एनी वेक्टर along the line बिल्कुल गलत है.
ओके, और वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये क्या नया चीज है, अभी कुछ नहीं है सर। सो यूनिट वेक्टर बताया था, एलिमेंट क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर 11 इज विजिबल गाइस। The value of c to satisfy the mod of c u vector equal to 3, u is this. Okay, the value of, we have to calculate the c, the mod of cu vector is basically 3. Okay, now listen, constant into a vector, if you have to find out the modulus of this, then you can take constant outside and take the modulus of this part, take the modulus of this part. Okay, so can I take the c outside, can we take the modulus of u vector equal to 3? Now tell me, u vector is associated with what, u क्या है, I cap j cap k cap से है, because given ना u vector कितना दिया है, u vector is basically we have I cap plus 2j cap plus 3k cap, u vector दिया हुआ है हमें, और I cap j cap k cap रहता तो उसका मॉडुलस याद है कैसे निकालते थे, रूट ओवर I के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर एंड k कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 3। सो c इनटू ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 9, यस, तो कितना हो जाएगा 14, तो c इंटू रूट 14 इक्वल टू 3, सो c इक्वल टू 3 अपॉन रूट 14 इज द आंसर। सो द ऑप्शन इज c, 3 upon root 14. Okay, this is the option. Clear? 3 by root 14 is the answer. Now next question. The value of, what we have to find out here, the value of I dot j cross k, okay, plus j dot I cross k, okay, plus k vector k cap dot I cross j. Okay, whenever you will get the question now like this, j cross k, I cross k, first you have to draw this, okay, this thing, the I cap, j cap and k cap, और किस साइड मूव करें, here in this direction positive, in this direction negative. now इक्वल टू I डॉट, व्हाट इज j क्रॉस के, j कहाँ यहाँ पे है, k यहाँ पे, तो आप ऐसे मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो j क्रॉस के बेसिकली ऐसा बोल रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, to erase this first, yeah, like this. So j cross k is basically anti-clockwise, तो j cross k कितना हो जाएगा, I, यहाँ पे I आ जाएगा, प्लस j डॉट, व्हाट इज I cross k, I cross k गाइस क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, I cross k, लुक एट दिस, I cross k ऐसा मूव कर रहे हैं, so that we'll get the negative that equal to minus j plus k vector dot, this is the cross, not plus, this is the cross, I cross j, I cross j, क्या होगा गाइस, I cross j एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, k क्या, clear? So I dot I is 1, j dot plus into minus minus, j dot j is 1, okay, k dot k is 1, we can cancel this, answer is 1. So answer for this question is 1. Okay, now next, very important, that is question number 13, the most important guys. Okay, the question number 13, what do we have here, the two vector I j plus k and 3I minus j plus 4k represent the two sides AB and AC respectively of the triangle ABC. The length of the median through A is, listen, length of the median through A is, we have to find out the median through A. So it is related with the triangle, the first draw the triangle. You can draw any triangle, okay, कोई भी triangle हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. So suppose this is a triangle, okay, let's assume that this is the A point, this is the B point, this is the C point. What is the question? Ki the AB is given, side of AB is given, this is the J cap plus K cap. Clear? And AC is given, this is given. AC means what? क्या दिया हुआ बोलो? 3I minus J plus 4K. Okay. But we don't have BC. So can we find out BC here? Now listen. According to the triangle, net means we can say that here कि AB, आप A से B पे गए, B से C पे जा रहे हो आप, BC plus, okay, AB plus BC. Can you say that if you move from A to B and if you move from B to C, it means that you move from A to C? Not plus. Can we say that like this? Sahil, very important question बच्चा, बताइए कि आप A से B पे आ रहे हो, B से C पे जा रहे हो, तो can we say that we move from A to C?
मतलब आप a to a plus ab to bc means ab vector plus bc vector equal to ac vector. Got this? Yes or no? Just let me Yes, know. sir. Okay. अब ab का वैल्यू कितना दिया है? j कैप प्लस k कैप. bc का वैल्यू कितना है? पता नहीं. We have to find that. ac का वैल्यू कितना दिया है? Guys, what is AC? AC is 3i 3i minus j plus 4k. Now can we find out BC here? BC कितना हो जाएगा? That will be the 3i minus j plus 4k. Okay, the minus ये टर्म उधर लेके चले जाइए. J cap और ये भी उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? K cap. So if you calculate the BC here, that will be equal to 3 में से 3i को कुछ टर्म नहीं है तो 3i minus j minus 2j plus 4k minus k तो plus 3k. तो we have BC. मतलब आपने इस साइड को फाइंड कर लिया. ये जो BC साइड है ना वो साइड कितना है बेसिकली 3i ओके माइनस 2j प्लस 3k. क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए. मतलब ये यहां से आपको एक मीडियन कोई पास करते हुए जाएगा, ठीक है, उसका लेंथ आपको चाहिए. मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ. लेट्स अज्यूम दैट यहां पर आकर के मिल रहा है. ठीक, यहां पर मिल रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ. Suppose this point as a d. Let's assume that this point as a d. We have to find out this length, AD. Length means what? They are talking about magnitude. They are talking about modulus. They are talking about modulus. Okay, magnitude, or you can say that modulus. तो मॉडुलस निकालने के लिए पहले वेक्टर तो पता होना चाहिए. ओके, बट कैन वी से दैट दिस साइड इक्वल टू दिस साइड? जो मीडियन है ना, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सामने वाला जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बोल सकते हैं. मतलब BD इक्वल टू DC. यस. नाउ सपोज अभी मुझे AD निकालना है तो कैन वी से दैट कि हम A से B पे जा रहे हैं और B से कहाँ पे जा रहे हैं? एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ. कि हम अब A से B पे जा रहे हैं और फिर हम B से D पे जा रहे हैं. इट मीन्स दैट हम A से D पे जा रहे हैं. मीन्स फ्रॉम हियर कैन वी से दैट like this, just a second. Okay, कि A to B प्लस B to D बेसिकली इक्वल टू क्या होगा? कोई बताओगे? हम A to B पे जा रहे हैं और B to D पे जा रहे हैं. इट मीन्स इक्वल टू A to व्हाट? D. A to D. AD vector. Now what is the AB vector? AB already know, J plus K plus what is BD vector? BD is what? Can we say that it's a half of BC vector? बेसिकली इट इज हाफ पॉइंट ना, ये आधा है ना, इधर का भी आधा, तो BC का आधा हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू AD वेक्टर. आर एम इज टू कैलकुलेट AD वेक्टर. ओके, तो J कैप प्लस K कैप प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज BC? BC भी आ गया, दैट इज 3i ओके माइनस 2j ओके प्लस 3k कैप ओके इक्वल टू AD वेक्टर. ओके, नाउ लिसन. सो J कैप प्लस K कैप प्लस 3/2i माइनस j कैप प्लस 3/2k कैप इक्वल टू AD वेक्टर. जस्ट अ सेकंड गाइस. नाउ लुक एट दिस. माइनस प्लस j माइनस j कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे कितना 3/2i है और यहाँ पे 3/2k प्लस k कितना हो जाएगा बोलो? सो 3/2i कैप यहाँ पे 1 है ना, 1k कैप प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? प्लस 5/2. वेट अ मिनट गाइस, don't have space that much. 5/2 k cap equal to AD vector. Yes. Now we have AD vector. Can we find out the mod of AD vector? कितना हो जाएगा बताओ कोई? What is the mod of AD vector? The root over this square means 9/4. The 9/4 plus 25/4. 9 plus 24, that is 34. The root over 34 by root 4 is what? 2. So this is the basically answer, root 34 by 2. Okay, so where is the answer? Root 34 by 2. That is the answer is A. Clear with this? Okay. Yes, sir. Yes. Now I will discuss. Do we have time? Yes, we have. So just a second, guys. We'll discuss two more questions, then we'll stop. 13 done. Yeah. 14. Just a second.
Okay, now look at this question. What do you have? Find the magnitude of a vector with initial point is this and terminal point is. Very easy one. Okay, initial point given, the terminal point given means the stop point. So this point has the 1 comma minus 3 comma 4, and this point has we have, let's say assume, listen maths में assumption बहुत ज़्यादा important है, जितना assume करोगे उतना अच्छा रहता है. तो 1 comma 0 comma minus 1, आप लोगों से स्टूडेंट और टीचर में डिफरेंस होता है, हम लोग assume कर लेते हैं, आप लोग assume नहीं कर पाते हो. assume क्या करो, तो हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं. अभी ए बी वेक्टर क्या था, ए बी वेक्टर याद करो, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो 1 माइनस 1 आई क्या प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस 3, ठीक है, जे क्या प्लस minus 1 minus 4 k क्या, दिस इज बेसिकली ए बी वेक्टर. सो कैन बी से दैट ए बी वेक्टर इज बेसिकली 0 माइनस 0 कितना होगा 0 i, और 0 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना होगा प्लस 3 j. ओके, प्लस नॉट प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 k क्या. सो व्हाट इज द मॉड ऑफ ए बी वेक्टर? द मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज बेसिकली रूट ओवर द 9 प्लस 25 and it is will be equal to root over 34. And listen, we have to basically calculate the magnitude of these 2 points now. So we can calculate with the help of distance formula also. डायरेक्ट आप लगा दो x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 होल स्क्वायर. लेकिन वेक्टर चैप्टर पढ़े तो हम वेक्टर से रिलेटेड थोड़ा करना चाहते थे, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया. ओके, नाउ आफ्टर दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड, ओके, 3 यूनिट बिहाइंड द yz plane, 3 unit behind the yz plane and 4 unit to the right of the xz plane, okay, and the 5 unit above the xy plane. Okay, what is the meaning of behind here, guys? Tell me what is the behind here? Negative 1. Negative one. Okay, and the above it means the what, the positive one. Okay, above means what, positive one. So guys, we don't have much time today, so this question we'll discuss in the next lecture. Okay, so from the very short question 2 से जो आगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. बाय गाइस.